Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and keeping safe. Today I'm gonna share my holy grail products with you all. The products which I have been using since I think more than 10 years. Like it's been more than a decade, okay? And they are tried and tested, and these are the products which I can't live without. And these are the products, they are with me since last 10 to 15 years. So if you wanted to know about these products, then please keep on watching. Alright, so the very first product, if you guys following me since the beginning of this channel, you guys know I have been raving about this product since then, okay? And I have tried so many products after this, but nothing could replace this one as for now, okay? And I'm talking about this Himalaya Purifying Neem Face Wash. Now it's my holy grail because this works really well on my face, okay? Initially I used to be dry acne prone, then still it worked really well. So if you are a person who have a dry acne prone skin, it gonna suit you perfectly. But आपको slightly dryness हो सकती है, उसके बाद आपको यूनिक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ेगी. But if you are a person who have oily and acne prone and combination skin, you gonna love this one. Trust me. This has only a neem and turmeric, which is haldi, okay? And inactive ingredients में there are some preservatives and colors as well. ये जो उन्होंने reference लिया होता है, it's from भव्य प्रकाशा, जो कि आयुर्वेदिक book है, okay? Now इसका जो consistency है, that's very gel like, moderate form बनाता है, काफी अच्छे से आपके face को clean कर देता है. Perfect for the morning times, जब आप shower लेते हो उस time के लिए this is perfect. Even अगर आप रात के time पे भी इसको use करते हो, still you can use this one. But मुझे ये personally feel होता है कि इस तरह के जो consistencies वाले gel consistencies वाले जो cleansers होते हैं, they need more water. Otherwise क्या होता है कि अगर आप अच्छे से उसको निकालोगे नहीं face से, तो आपको जब आप next product apply करते हो तो आपको foamy और वो soapy feel, आपको जैसे आप कुछ मसाज करोगे तो वो soapy सा बनना शुरू हो जाता है. वो issue मुझे feel होता है इन सारे cleansers के साथ. I personally prefer this one for the morning times, okay? So if you haven't tried this out yet, then please try once in a lifetime. You're not gonna regret. And because इसका जो price point है उसको कोई beat नहीं कर सकता. I just love this one. Next is my magic product. Now a lot of you have asked a lot of time कि magic product क्या है. So this is a Himalaya Neem Purifying Face Pack. इसको as a face pack भी यूज़ करती हूँ, but generally और mostly मैं इसको as a spot treatment यूज़ करती हूँ. जब भी मुझे कहीं पे active bump हो जाता है तो मैं इसको लगाती हूँ, ये मेरे acne को बिठा देता है, okay? Now again I'm saying कि ये एक्ने स्कार्स पे काम नहीं करता है, ये सिर्फ आपके एक्टिव एक्नेस पे काम करता है. और अगर आप इसको जैसे हफ्ते में 2 बार अगर आप फेस पैक लगाते हो, अगर आप 2-3 बार इसको हफ्ते में लगाते हो तो आपको एक्ने भी कम होने शुरू हो जाएंगे, ओके? अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है. इसके अंदर भी नीम है एंड टर्मरिक है, बाकी प्रिजर्वेटिव्स है. इसको जब भी आप एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट लगाते हो ना, आई पर्सनली कीप इट ओवरनाइट, ओके? मुझे कोई इशू नहीं होता है. एंड इफ़ यू आर अ पर्सन हु थिंक कि हाँ अगर इसको लगाओगे तो मॉर्निंग में फिर निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं है. आप हल्का सा फेस वेट करें तो वो ईजिली निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकलता है. सो या आई जस्ट लव दिस वन. एंड इफ यू हैवंट ट्राइड दिस वन आउट येट, try this one out once in a lifetime. You're not gonna regret. So this next item, ये I think when I was in college, it's back in 2009 की बात है, when I was doing my graduation. मेरे रूम के बगल में एक लड़की होती थी, she was from Shimla. She used to do that, पूरा वो एवरिल वाला पूरा लुक बना के रखती थी और हमेशा वो उसके बाल स्ट्रेट रहते थे. एंड she used to straight her hairs every day. और मैं उसको पूछती थी कि यार तेरे बाल खराब नहीं होते? देन शी से कि नहीं मैं ऑयलिंग अच्छे से करती हूँ. देन आई सॉ दिस ऑयल, थॉट कि अगर इतना इसके बालों को ये प्रोटेक्ट करके रख रहा है तो कुछ तो इसमें होगा. एंड सिंस देन आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस वन, एंड ये अब तक मैं यूज़ करती हूँ. लाइक अगर मैं एम्प्टी संभाल के रख सकती तो मैं आपको बताती इन सब प्रोडक्ट्स की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज, कि मैं कितने इनके एम्प्टीज ख़त्म कर चुकी हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगारो का एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल. Oh my god, this is a product which gonna be a holy grail for everyone. If you have used this product, you guys already understand कि ये क्या magic करता है आपके hairs के लिए. If you have dry and frizzy hairs ना,
भाई साहब ट्राई दिस वन आउट वंस, ओके। मैंने इसको तब से यूज़ करना शुरू किया है एंड आई रिमेंबर आई यूज़ टू टेक दैट 100 ml वाला, इसका जो छोटा वाला आता था 195 रुपीज़ की आती थी वो शीशी। पापा को बोलती थी कि लेके आओ एंड वो ज़्यादा चलती नहीं थी बिकॉज वो छोटी सी होती है एंड आई यूज़ टू से दिस टू पापा कि पापा ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। एंड देन पापा ने नेक्स्ट टाइम से क्या किया, फिर वो टीन वाला जो 250 ml वाला आता था ही यूज़ टू गेट दैट फॉर मी, ओके। तो मैं जब भी घर जाती थी तो वो मुझे वो लेके देते थे। सो लिटिल नॉस्टैल्जिक ऑन दैट पार्ट, बट एनीवेज कमिंग बैक टू दिस वन नाउ। इसके हमने कितने टिन फिनिश किए हैं मैं अब नहीं, मेरे पास गिनती नहीं कि मैंने कितने ख़त्म किए हैं। सो दिस वन इज़ माई होली ग्रेल बिकॉज दिस वर्क ऑन माई हेयर्स रियली रियली वेल। सो अभी जो मैं ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हूँ वो सिर्फ स्कैल्प के लिए होता है एंड लेंथ पे मैं इसको यूज़ करती हूँ। ट्राई दिस वन आउट, आई एम टेलिंग यू। मैं बेट लगा के आपको बोल सकती हूँ कि कोई हेयर मास्क और कोई हेयर बटर वो काम नहीं कर सकता जो ये ऑयल करता है। उसके बाद जब आप अपने हेयर वॉश करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आपके हेयर्स मैनेजेबल हो गए हैं, सिल्की एंड स्मूथ हो गए हैं, ओके। सो ट्राई दिस वन आउट एटलीस्ट फॉर अ मंथ, ओके। हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज़ करो जैसे मैं अब बता रही हूँ। ओवरनाइट आप इसको रख सकते हो एंड मॉर्निंग में आप वॉश करो, अगर वो कर सकते हो देन वो ज़्यादा अच्छा है, ओके। अदरवाइज वो नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट शैम्पू से पहले कम से कम 2 घंटे पहले इसको लगाओ, 2 घंटे तो कम से कम इसको रखो टू लेट इट वर्क ऑन योर हेयर्स, ओके। एंड उसके बाद जब वॉश करोगे ना, I'm telling you, you're gonna come and thank me later. Haven't tried this one out yet? Try this one out once in your lifetime. Now next is my body essentials. Now इनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ and I don't even remember कि ये 10 साल से ऊपर है, 15 साल पहले है या 17 साल पहले है या 20 साल पहले है, मुझे नहीं याद मैंने इनको यूज़ करना कब शुरू किया था, बट ये अभी तक रीपर्चेज होते हैं और मैं अभी तक इनको यूज़ करती हूँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस निविया का अंडर आर्म रोल ऑन, ओके ना। ये पर्ल एंड ब्यूटी वाला है, इसके बहुत से वेरिएंट्स और भी आए, वाइटनिंग वाला आया, अंडर आर्म वाइटनिंग वाला, बहुत सारे वेरिएंट्स आए, मैंने सब ट्राई किए बट नथिंग बीट दिस वन, लाइक दिस पर्ल एंड ब्यूटी वन एंड दिस प्रोटेक्ट एंड केयर वन, ओके। दीज 2 आर माई फेवरेट्स। ना इफ़ यू आर अ पर्सन, रिसेंटली समबडी आस्क्ड मी टेल मी समथिंग कि मैं पूरा दिन ऐसा लगे कि मैं गुलाबों में महक रही हूँ, स्मेल ना आए, बैड ओडोर ना आए। सो सी गाइज, ये जो ओडोर वाला इशू है ना ये सबके साथ होता है, एवरीबडी यूज टू स्वेट, बट डिफरेंस ये होता है कि अगर आपका वो एरिया क्लीन नहीं है और ड्राई नहीं है तो वहाँ पे जर्म्स होने शुरू हो जाते हैं, तो उनसे फाउल स्मेल आना शुरू हो जाता है। इफ़ यू आर ए पर्सन हु स्ट्रगलिंग फ्रॉम दैट बैड ओडोर वाला इशू, जस्ट टेक अ शावर एंड उसके बाद इमीडिएटली आप इनको लगा लीजिए, लेट इट ड्राई एंड देन उसके बाद जो भी आप अपना स्किन केयर करते हो वो आप कर सकते हो। एंड यू डोंट नीड टू रीअप्लाई दीज, ओके, बिकॉज these are super long lasting, but still if you want to double the effect तो इन्हीं का जो स्प्रे आता है आप वो यूज़ कर सकते हो। बट आई पर्सनली डोंट लाइक स्प्रे ऑन अंडर आर्म्स बिकॉज अभी वो पता नहीं अजीब सा हो गया, वाइट सी फोम सी कुछ छोड़ता है, तो मैं उसको नहीं रिकमेंड करूँगी। बट येस, यू कैन लेयर अप विद अ परफ्यूम और अ बॉडी मिस्ट, अच्छा सा बॉडी मिस्ट ले लीजिए जिसको आप हर 3-4 घंटे बाद रीअप्लाई करते रहें, तो ऑफकोर्स यू गोना स्मेल लाइक फ्लावर्स ऑल डे लॉन्ग, ओके। नेक्स्ट 2 आइटम्स आर अगेन माई बॉडी केयर एसेंशियल्स। ये 2 चीज़ें भी आई थिंक, मुझे नहीं याद मैंने कब यूज़ करनी शुरू करी थी, बट जब से यूज़ करनी शुरू की हैं मैंने इनको रिप्लेस नहीं किया है एंड ये अभी तक कंसिस्टेंट यूज़ हो रही हैं, ओके। सो वन इज़ दिस वेगा का फुट फाइलर। हाँ, आई टेल यू, मेरा अभी रिसेंटली जब मैं यहाँ आई हूँ, इस घर में शिफ्ट हुई थी, तो केयर सी व्हेन यू आर अ मदर ऑफ 2.5 year old बेबी, तो आपको टाइम नहीं मिलता है अपना केयर करने का, और वही मेरे साथ भी हो रहा था। आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम और मेरे जो एड़ियाँ थी ना वो इतनी बुरी तरह से फट गई थी, और जब मैं अपने पैर देखती थी तो मुझे इतना ऐसा लगता था कि यार ऐसा तो मतलब जो बेचारे मजदूर काम करते हैं उनके भी नहीं होंगे इतनी बुरी हालत जितनी मेरे पैरों की हो गई थी। एंड देन रिसेंटली जब मुझे लगा कि नहीं बस अब और नहीं, ओके, देन I use this one, okay. So मैंने क्या किया, first what you have to do is you have to scrub from this side, okay. ये 2 sides हैं, okay, आपको पता चल जाएगा, एक साइड थोड़ी हार्ड है, एक साइड थोड़ी सॉफ्ट है, ओके। सो ये वाली जो साइड है स्क्रब वाली साइड, इस साइड से पहले तो मैंने अच्छे से, ऑफकोर्स पहले मैंने उनको थोड़ी देर के लिए पानी में रहने दिया ताकि वो जो डेड स्किन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए।
देन आई स्क्रब विद दिस, ओके, फ्रॉम दिस साइड, ओके। उसके बाद मैंने इस साइड से उसको अच्छे से, आई थिंक ये सॉफ्ट वाली साइड है थोड़ी सी, फिर इस साइड से मैंने उसको स्क्रब किया अच्छे से, एंड देन आई पुट लाइक ऑफ कोर्स वॉश किया, और उसके बाद मैंने एक बॉडी बटर लगाया अपने पैरों पे, एंड उसको अच्छे से मैंने मसाज किया पैरों पे, काफ़ी आई थिंक 4 to 5 मिनट्स तक मैंने उसको मसाज किया, एंड देन आई पुट ऑन द सॉक्सेस। और ये चीज़ मैंने करी है कंटिन्यूस फॉर 3 to 4 days, एंड माई एंकल्स आर बैक, ओके। लाइक मेरी जो एड़ियाँ फटी हुई थी, जो हालत ख़राब थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई है अब। सो दिस इज़ अ मस्ट बाय इफ़ यू फेसिंग द सेम इशू, एंड वैसे ही करना जैसे मैंने यूज़ किया, लाइक फर्स्ट स्क्रब फ्रॉम दिस साइड एंड देन फ्रॉम दिस साइड, ओके। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस स्प्यूमिंग स्टोन, ओके। ना आई डोंट नो कि मैं कब इसको लिया था और कब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लाइक ऑफ कोर्स ये जो आपका एक है ना, ये आपका बहुत लंबा चल जाता है, इतनी जल्दी घिसते नहीं है, ये आराम से आपके 4-5 साल ये निकाल देते हैं अगर आप सिर्फ इनको पैरों पे यूज़ करो। सो ये जब आपके एक बार पैर ठीक हो जाए ना, तो आपको डेली ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये हफ्ते में 1 या 2 बार आप कर सकते हो फॉर डेली पर्पज़। दिस वन इज़ रियली रियली गुड। तो अभी मैं डेली इसके साथ जब भी नहा के हटती हूँ, उसके बाद इसके साथ अच्छे से उसको मैं स्क्रब कर लेती हूँ। इवन दिस वन इज़ रियली गुड फॉर योर दिस, ये वाला जो एरिया डार्क होता है, या आपके जैसे लेग्स हैं या ऊपर का स्किन है, इस पर भी अगर आप हल्के से इस तरह से इसको सर्कुलर वे में अगर इसको चलाओगे ना, तो ये काफ़ी अच्छी एक्सफोलिएशन आपकी कर देता है। बट इफ़ यू आर सुपर सेंसिटिव स्किन, देन इसको स्किन पे मत चलाना, सिर्फ यूज़ दिस वन ऑन योर फीट और नीज वगैरह हो गए, या ये वाला जो एरिया होता है इस पर आप चलाना, बट बहुत ही स्मूथ रखना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप छिल भी सकते हो अपनी स्किन को। सो या दीज आर 2 प्रोडक्ट्स विच आर माई बॉडी एसेंशियल्स एंड होली ग्रेल, एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस वन सिंस मोर देन अ डेकेड। क्या गाइज, ये था पार्ट 1, इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड आई होप यू फाउंड this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.